Hello student, today in this video I explain question number 7 from exercise 6.3. Look, question number 7. The student of class 8th of high school donated rupees 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. Okay? Look. Let the number of students be x. Okay? Let the number of students be x. Then collected money by each student be rupees x. According to question. ओके, अब देखिए सपोज दैट टोटल स्टूडेंट कितने हैं x है और एवरी स्टूडेंट ने मनी प्रोवाइड करी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी कितने जितने स्टूडेंट थे उतने रुपीस एवरी स्टूडेंट ने प्रोवाइड करे। आई मीन इफ द टोटल नंबर स्टूडेंट बी x देन प्रोवाइडेड मनी इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बी x. ओके, then according to question x multiplied by x equal to 2401. So x square equal to 2401, then x equal to into 2401. Okay, x multiplied by x equal to 2401. अगर मान लीजिए कि आपको ये फाइंड करना हो कि टोटल मनी कितना आया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय डोनेटेड मनी बाय ईच स्टूडेंट, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मनी क्लियर हो जाएगा। तो वही आप देखिए यहाँ पे राइट हो रहा है x मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 2401, देन x स्क्वायर इक्वल टू 2401. सो x इक्वल टू इनटू 2401, देन वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2401. ओके, firstly we find product and fraction of the given number and in 2401 which number divides of 2401. सेवन से कितने से 7 3 जा 21. ओके, 2 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 3 जा 29, फिर 7 49 and 7. Okay, right here at this place 7 into 7 into 7 into 7. Then pairing of the given from factorization number. Okay, like that. Right here one number from each pair 7 and 7 equal to 49. So total number of students. So total number of students equal to 40. ओके, कोई प्रॉब्लम? लुक नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 8. 2
2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. ओके, क्वेश्चन है आपका कि एक गार्डन है, उसमें जितने रो हैं उतने ही प्लांट एवरी रो में हैं. ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो. लेट number of row in a garden be yes. Then number of plant in each row equal to yes. According to question, x multiplied by x equal to 2025. ओके, टोटल नंबर ऑफ प्लांट दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे. देखिए सपोज दैट, मान लीजिए आपका गार्डन क्या है, गार्डन. ओके, गार्डन में ए रोज है, कितने रोज है, 2 रोज, ओनली 2 रोज. देन इन ईच रोज हैज in each rows have only 2 plants. Okay, how many plants in this garden? 2 into 2 equal to 4. Therefore 2. Same applies the process in this question. X multiplied by x equal to x square equal to 2025. So x equal to into root 2025. Okay, then find the value of in root 2025. Firstly, we find prime equation of the given number. I mean 2025. Which number divides up to 2025? Its unit place is 5. So this number is divisible by 5. Okay, 5. Firstly, divide 3. 3 6 18, 3 7 3 5. Okay, 3 2 जा, फिर 3 से आप डिवाइड कर लीजिए. 3 7 जा 3 5 जा, 3 25, 5 and 5. Okay, write at this place of given factors 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5. Given number are pairing. 3. Okay, 3 pairs are completed. Then one number write from each pair. 3 and 3 and this 5. Okay, what is coming here? 3 3 जा 9, 5 जा 45. ओके, कितना आया? 45. ये आपका सॉल्यूशन. सो रिक्वायर्ड या शो नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रोज इक्वल टू 45. अंडरस्टैंड? It is no. Okay. Question 9. Find the smallest square number that is divisible by each of the number 4, 9, 10. Firstly, we find LCM of 4, 9, 10. 4, 9, 10. Okay? 2 to the 4, 9 is not divisible by 5. 2, 9 and 5 is not divisible. 3, 1, 3, 5. 3, 1, 1, 5 and 5 here. Okay, LCM equal to into 2 into 3 into 3 into 5. 2 to the 4, 3 to 10, 3 to 36, 5 to 80. Okay, because 180
180 equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Pairing of the given number. 5 is not in pair. 5 because 5 is not in pair. So 180 is not a perfect square number. Perfect square number. So required number. So required number equal to 180 multiplied by 5 equal to 900. ये है आपका सॉल्यूशन. ओके. You will solve क्वेश्चन नंबर 10 as same. इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेंगे. ओके, समझ में आ रहा है ना. आप देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 में है 8, 15 एंड 20. फर्स्टली वी फाइंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर and then define given number is a perfect or not. Okay, और सेम आप इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. एक्सरसाइज 6.4. एक क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप सेल्फ सॉल्व करेंगे. ठीक है. ये है मैं डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. फाइंड स्क्वायर रूट by division. Okay. Look question first. 2304. ठीक है. This is your first question. Write as same. Clear? In the right side. In the right side, they are from 1st digit to 1st digit. Right pairing of the given number. देखिए दो पेयर कंप्लीट हो गए. इस तरीके से हम क्या करते हैं, राइट साइड से दो मतलब दो नंबर की पेयरिंग करेंगे. एक बार ड्रा किया है. अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से फर्स्ट बार के नीचे जो भी नंबर है उसी को हम लेंगे फर्स्ट में. तो फर्स्ट बार के नीचे कितना है 23. ओके 23. अब ऐसा नंबर फाइंड कीजिए कि जिसका स्क्वायर क्या है तो 23 से अधिक ना हो. ओके, समझ में आ रहा है ना. देखिए फर्स्ट बार के नीचे क्या है 23. अब ऐसा नंबर फाइंड कीजिए कि जिसका स्क्वायर करें तो इससे अधिक ना हो. 4 का स्क्वायर करें कितना होगा 60. 5 का स्क्वायर करें कितना होगा 25. 25 is greater than 23. So we take 4. Okay, write here 4 and here 4 4 जा 60. जो नंबर आप लेंगे उसको यहाँ पे भी राइट करेंगे, वही नंबर यहाँ पे भी राइट होगा. और 4 आपको मिला कहाँ से, 4 कहाँ से आप लिए. देखिए फर्स्टली टेक 23 and then find the number whose square is not greater than 23. So firstly we take 4. 4 का स्क्वायर कितना होगा 60 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25. 25 is greater than 23. So we take 4 right here and here. Okay, minus कितना आएगा इसमें 7 and 0. ये नंबर जो आप यहाँ पे राइट किए यहाँ पे राइट करके दोनों ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 8 आएगा.
कितना है 8। अब देखो 8 है, अगर सपोज दैट हम इसको 1 टाइम ले जाएंगे तो 1 यहाँ पे भी लिखेंगे 1 यहाँ पे भी लिखेंगे। अब इस 1 का मल्टीप्लाई पूरे होल में होगा तो 81 हो जाएगा, बट 7 इज लेस, सो राइट हियर 04 both of the number at this bar, at under this bar, okay? अब आप ऐसा नंबर लीजिए जिसको यहाँ पे भी राइट कर दिया जाए, उसको यहाँ पे भी राइट कर दिया, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन इससे देखना हो तो हम लेते हैं कितना 8 8 या 64, 8 या 64, 6 कैरी, फिर 8 या 64 और 6 कैरी कितना होगा 7। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इक्वल टू 40। कोई प्रॉब्लम? देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4489 यह है सेकंड क्वेश्चन। 4489 आप ऐसे ले लेंगे। अब आप क्या करेंगे, राइट साइड से दो दो नंबर पे बार ड्रा करेंगे, राइट साइड से दो दो नंबर पे बार ड्रा करेंगे, ये हो गया है, क्लियर। अब लेफ्ट साइड से फर्स्ट बार के नीचे क्या लिखा हुआ है 44। अब ऐसा नंबर लीजिए कि जिसका स्क्वायर किया जाए तो 44 से अधिक ना हो, ओके। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 इज ग्रेटर देन 44, so we take 6, right here 6 and here 6 is 36, subtracted each other, ठीक, will come 8, ओके। 6 राइट करके दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 12 आ गया। अब 89 आप ऐड कर लेंगे यहाँ पे, अभी कितने का जाएगा 7 का जाएगा, 7 राइट किया है, 7 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, ठीक है, और 7 2 जा 14, 4 कैरी 18, 1 कैरी, 7 जैसे 1 में कोई डाउट? ये हो गया आपका सेकंड सॉल्यूशन 4489 इक्वल टू 67, ठीक है। बाकी देखिए रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बाय सेम प्रोसेस, अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।